हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानकोश। आइए बात करते हैं एक खबर के बारे में जहां पाकिस्तान के नए केयर टेकन पीएम काकर ने जम्मू कश्मीर के बारे में बयान दिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। हर बार लगभग ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति जाकर यूएनजी में ऐसा कोई बयान जरूर देता है। अब जब बयान आया तो इससे पहले कि आप इंडिया का जवाब सुने, मेरा आपसे एक सवाल है कि वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? कहाँ पर है? जम्मू में है, हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में या पंजाब में? बताइए मुझे कहाँ है। और जब आपको इतना पता ही है तो उस एक लेक का नाम भी बता दो जिसके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म भी बनी थी, जो फिल्म में दिखाया भी गया था। कहां पर है, क्या नाम है उस लेक का? चाइना के साथ अभी वहां विवाद भी चल रहा है। तो अब सुनिए आप इंडिया का जवाब क्या था पाकिस्तानी पीएम के स्टेटमेंट के बाद। Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. Third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations. तो आप आमतौर पे यही देखेंगे कि पाकिस्तान के हर पीएम ना ऑलमोस्ट यूएन में जाकर ऐसा बयान देते ही देते हैं। इससे पहले जो उनके शहबाज शरीफ थे, इन्होंने भी जाके यही कहा था कि कश्मीर को रिजॉल्व करना है, पाकिस्तान कश्मीर में शांति चाहता है और भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है और भारत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर रहा है कश्मीर में। पीओके की बात करेंगे वो आज़ाद कश्मीर है, जबकि भारत के पास जो कश्मीर है वही सारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है लोगों का और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर बन रही है। लेकिन इस बार एक खास बात है, यहाँ पर कौन है इस बार? तो केयर टेकिंग पीएम। आप कहोगे सर ये शहबाज शरीफ का तो पता था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पीएम थे, उस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके भाई थे नवाज शरीफ के, तो पीएम बने। ये नए पीएम कहां से आ गए? तो पाकिस्तान में एक सिस्टम है केयर टेकिंग पीएम का कि जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं किसी सरकार के, उसके बाद एक पीएम आता है जो इलेक्शन करवाता है। ऐसी गवर्नमेंट इसे कहता है केयर टेकिंग गवर्नमेंट। ये ख्याल रखने के लिए आई है इलेक्शन जब तक ना हो जाए। तो केयर टेकर पीएम है, इनका नाम है अनवर उल हक काकर और ये
बलूचिस्तान आवामी पार्टी के मेंबर हैं। और ये जो पार्टी है ये असल में कहाँ की है, तो बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जो आपको दिख रहा है ये, और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित प्रोविंस भी है। लगातार पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बहुत प्रताड़ित करती है। असल में सबसे ज़्यादा संसाधन यानी रिसोर्सेज पाकिस्तान के गई हैं तो बलूचिस्तान में है। सबसे ज़्यादा जो उनकी जो एरिया है वो इस राज्य का ही है, और यहाँ सबसे कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करता है। यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। जब चाइना ने अपना सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जो इस रास्ते से होके गुजरता है, जहाँ ग्वादर पोर्ट का रास्ता है, तो उस पे भी बलूचिस्तान में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन बलूचिस्तानियों को उसका कोई शेयर नहीं मिला। तो बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार बलूचिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके बारे में आवाज उठाते रहते हैं। तो भाई जो हमारे ये पीएम काकर साहब है पाकिस्तान के, अनवरुल हक काकर, इनको पहले ये देखना चाहिए कि इनके जो खुद के प्रोविंस राज्य में जो हालत पाकिस्तान ने कर रखी है उसकी क्या स्थिति है। इन्होंने कहा पाकिस्तान सपोर्ट करता है यूएनएससी रेजोल्यूशन का जो इंडिया को कश्मीर में करना चाहिए। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपका एक सवाल होगा कि जब ऐसी हालत बलूचिस्तान की है तो बलूचिस्तान की पार्टी का लीडर कैसे आकर इंटरिम पीएम बन गया पाकिस्तान का। तो उसके पीछे कहानी ये है कि इनकी जो बलूचिस्तान आवामी पार्टी है असल में बहुत क्लोज है पाकिस्तानी आर्मी के, और पूरा पाकिस्तान आर्मी ही रन करती है। तो ये उनके क्लोज है, तो इनको वहां पर केयर टेकिंग पीएम बना रही है। और पीएम बनने के बाद ये जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये पीएम रहेंगे। और इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, भारत के खिलाफ जाकर एक बयान जारी किया। और उसके बाद भारत का बयान जो आया वो आपने सुना ही कि कहा पहले आप अपने गिरेबान में झांके, और जो गलतियां पाकिस्तान खुद कर रहा है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन वो कर रहा है, पहले उसको वो ठीक करे। अब जरा आते हैं जरा ज्योग्राफी की तरफ और समझते हैं कि क्या इलाके हैं। देखिए ये है पीओके जो भी पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगित बाल्टिस्तान, और ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, या जम्मू का इलाका नीचे का, ऊपर का कश्मीर का हो गया। इसके बाद का इलाका ना ये पूरा पीओके है, ये वाला और ये वाला, गिलगित बाल्टिस्तान और आपका आजाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है, ये सारे इलाके पाकिस्तान के कब्जे में है। ये वाला अक्सर चीन जो है ये अभी चाइना के पास है। यहाँ आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। एलओसी एलएसी का अंतर आप समझ गए होंगे। एलएसी वो सीमा रेखा है जो भारत और चाइना को विभाजित करती है, जहां पर अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। जब 1947 का टाइम था ना, तब जब इनिशियली जो वहां के राजा थे उन्होंने भारत की सरकार के साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था कि कश्मीर भारत का पार्ट बनेगा। तभी मुजफ्फराबाद और यहाँ के इलाकों से जो आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्राइबल, पश्तून ट्राइबल पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट के थ्रू कश्मीर में घुसे और कोशिश की विद्रोह खड़ा करने की। जब वो सफल नहीं हो सके तो पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट के थ्रू हमला कर दिया था पूरे कश्मीर के ऊपर, और तब जाके ये मुद्दा यूएन में गया था। अब यूएन में जब ये मुद्दा गया तो यूएन में एक रेजोल्यूशन आया था। उस रेजोल्यूशन को जरा देखें जिसकी दुहाई इतनी बार पाकिस्तान देता है, अगर आप उसको भी देखें तो अगर पीस एंड ऑर्डर की बात की गई है, जो रेफरेंडम की बात या जो भी बातें वो करते हैं, उसके लिए एक बात उसके अंदर भी बोली गई है कि कश्मीर को सिक्योर करने के लिए सबसे पहली चीज बोला गया था कि पाकिस्तान शुड विड्रॉ द ट्राइब्समैन एंड पाकिस्तानी नेशनल्स नॉट नॉर्मली रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट। जो कश्मीर में नागरिक नॉर्मली नहीं रहते थे और जो ट्राइब्समैन घुसे थे उनको पहले बाहर निकालो, अपनी सेना वहां से बाहर निकालो। आज तक पाकिस्तान ने पीओके से एक व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला। कश्मीर में खुद के जो मिलिटेंट भेजे वो अलग, इनको लगातार उसमें बोला गया है कि पाकिस्तान सबकी सुरक्षा सिक्योर करे, कोई हमला ना करे, और अभी तक पाकिस्तान लगातार वहां हमले किए ही जा रहा है। तो यूएन का रेजोल्यूशन है, आप उसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उस रेजोल्यूशन के बाद भी अगर माने तो वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्थिति की है वहां वो बद से बदतर है, और बिल्कुल भी उनके प्रोविजंस को माना नहीं, लेकिन आकर बयान जरूर दे रहे हैं कि भारत भाई यहाँ पर रेफरेंडम करा ले, क्योंकि ऐसा यूएन में कहा। यूएन ने जो कहा है पहले उसकी पूर्ति तो वो जो करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ ये बोला भी गया है कि जो रेजोल्यूशन है उसके तहत जब ट्राइब्समैन विड्रॉ हो जाएंगे तब जाकर इंडिया अपने सिपाही पीछे खींचेगा। इंडिया ने ऑलरेडी उसको काफी कोशिश की डिमिलिटराइज करने की, उस समय से ही अपनी सेना बाहर खींचने को लेकर, लेकिन पाकिस्तान मानने से रहा नहीं। और याद रखिए ये कुछ तस्वीरें भी हम देख सकते हैं कैसे 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ते हुए अपनी फौज को यहाँ भेज दिया था। ट्राइबल जो रेडर्स थे उनको ट्रेन किया था, जो ट्राइबल लोग थे पश्तून वॉरियर्स, उनको वहां से भेजा था ट्रकों में भर भर के 1000 ट्राइब्समैन, ताकि यहाँ विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए और पाकिस्तान कब्जा कर ले पूरे कश्मीर के ऊपर। लेकिन ऐसा हो ना सका, और इन बातों को बिल्कुल भूल के उनके अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बड़ी ही बेशर्मी के साथ यूएन में जाके बयान देते हैं और लगातार इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और यही इंडिया का रिप्लाई था
कि आप प्रोपेगेंडा करना बंद करिए और अपनी रियलिटी को पहले समझिए, उसके बाद कुछ बोलिए। तो हर यूएनजीए सेशन में, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के सेशन में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर है उस मंच का इस्तेमाल ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है और इंडिया का कोई डिप्लोमेट उसका जवाब देता है। तो ये था आज का डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर जो कश्मीर के ऊपर मुद्दा बना हुआ है लगातार उनके पीएम्स का। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कि इंडिया ऐसा क्या करेगी भाई, ये बार बार उसके बारे में बोलना छोड़ दें। अब तो आर्टिकल 370 भी गया और इंडिया ने कश्मीर को ऑलमोस्ट पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया अपने साथ। जो एक स्पेशल स्टेटस था अननेसेसरी सा, वो भी अब नहीं है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।